कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल I had given you brief how we will going to carry this program. Now first of all I will going to start this program from the origin and evolution of the earth. मैं सिर्फ आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ आज, ठीक है, थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं हम। तो ये एक तरीके का रिवीजन मॉड्यूल ही है ना पूरा सब्जेक्ट। बिल्कुल 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 बिल्कुल, सब जहाँ कुछ पे cover हमें होता है। जहाँ पे हमें पॉइंट इंपॉर्टेंट लगेंगे हम लोग उसको लिखते हुए चलेंगे, ठीक ठीक है, मुझे वो बताने की तो रिक्वायरमेंट इसका है। कुछ पीपीटी भी तो आप शेयर कर दीजिएगा ना बाद में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो सब तो मिल जाएगा, वो मैं आपके साथ जो हम मैंने आपको मैप्स इमेजेस मेरे हाँ। पास हैं, वो आपके साथ हम शेयर कर लेंगे जैसे हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा, उसके बाद हम लोग उसको शेयर कर लेंगे, ठीक है सर। ओके फाइन, ग्रेट। नाउ I am talking, we are starting with our origin and evolution of the earth. When we talk about the origin and evolution of the earth, means largely a questions come in our mind how this earth or universe evolved. So with respect to this thing, many theorists came with different hypotheses. Many theorists came with different hypotheses. Like we say that one is the one of the famous early theory, that is your nebular hypothesis. Here nebular word means this nebular hypothesis first of all was given by Immanuel Kant first of all, and this Immanuel Kant told that means our universe, our earth, our planets are formed with the help of a gas clouds, with the help of your gas clouds. He told that the gas clouds was there, these gas clouds started condensing with each other. Because of gravity they condense, and slowly they were converted into your sun and planets. They were converted into your sun and planet. This theory was given by Immanuel Kant, but Laplace revised this theory and he came with, you can say, revised nebular hypothesis. He came with revised nebular hypothesis. What Laplace did, Laplace has added one more thing. He told that in nebular hypothesis, gas clouds and dust particles, they collide with each other slowly steadily with the help of fusion. वो आपके सारे आपके sun, आपके dust particles and वो सब चीजें बनते बनते आपके सारे sun और planets बन गए. But due to lack of proof कि how these things evolve, modern scientists discarded this theory. Modern scientists ने इस theory को discard कर दिया, मना कर दिया. But पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि नेबुलर हाइपोथेसिस में किसकी इन्वॉल्वमेंट थी, वी कैन से इम्मानुएल कांट एंड लैप्लेस. नेबुलर हाइपोथेसिस, इम्मानुएल कांट एंड लैप्लेस. Those who can open their camera, it will be fine. अच्छा, अभिनव का तो प्रॉब्लम ही आ रही है. Okay, fine, great. Okay. Now, second theory we are talking about means early theory. It is your wandering star hypothesis. This was given by Chamberlain and Moulton. In that theory, these scientists told that earlier there was a cigar based kind of material was there, huge cigar was there, and due to some of the you can say gravitational pull, means he told that one at that time one star was passing through that cigar based material, and because of friction few particles were disintegrated from that cigar, and slowly steadily those particles were started revolving around the sun. That led to the formation of planets. Now इस थ्योरी के अंदर मॉडर्न साइंटिस्ट को बहुत बड़ा कोई बेस नहीं मिल पाया, उनको कोई बेस नहीं मिला, इसीलिए इस थ्योरी को भी डिस्कार्ड कर दिया गया. बट इस थ्योरी को पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, वंडरिंग स्टार हाइपोथेसिस किसने दिया, चैम्बरलियन एंड मोल्टन ने दिया. चैम्बरलियन एंड मोल्टन ने वंडरिंग स्टार हाइपोथेसिस दिया. मींस सिगार बेस थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है.
ठीक है. Third important, you can say tidal hypothesis. We are aware of tides. Now, this tidal hypothesis was given by Sir James Jeans and Harold Jeffrey. Tidal hypothesis was given by Sir James Jeans and Harold Jeffrey. These two scholars came with your tidal hypothesis. One thing. Now, tidal hypothesis में क्या basic बात बोली गई? They told that earlier there was a sun, and they also told that a star similar to the size of sun came in front of sun. Because of gravitational pull, they starting pulling each other. What was the result? He told that because of gravitational pull, जो एक स्टार जो सन के सामने आया, उस gravitational pull की वजह से क्या हुआ? जो भी सन में मटेरियल थे, वो सब चीजें बाहर आ गई. And they converted into your planets. I mean, same हो गया जी. यू मंत्र बोला, वो सब चीजें बन गई. मगर इन्होंने स्कॉलर्स से इन्होंने ली थी, बट मॉडर्न साइंटिस्ट ने इनकी भी थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि इनकी थ्योरी के अंदर एक प्रॉपर बेस नहीं मिल पाया था. प्रॉपर बेस ना मिलने की वजह से ये सारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज आपकी डिस्कार्ड हो गई. नाउ फिर आए हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट, और यू कैन से मॉडर्न स्कॉलर्स. In that, modern scientists feel that they came with a new theory. That theory is called as Big Bang theory, जिसको हम लोग एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं. एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स के नाम से हम लोग जानते हैं. नाउ इन दैट मॉडर्न साइंटिस्ट टोल्ड दैट कि they believe that our universe was evolved somewhere around 13.7 billion year ago. 13.7 billion year ago पहले हमारा यूनिवर्स का बनना मींस ये बिग बैंग आपका स्टार्ट हुआ, मींस बिग बैंग एक्सप्लोजन स्टार्ट हुआ. In that they told that earlier our universe was you can say a very small tiny ball with immense heat. They told that a time came because of heat that ball started expanding. And without you can say immense heat, and there was an expansion and there was a blast. At the time of blast, one gas evolves. एक गैस उन्होंने कहा आपकी इवॉल्व होके बाहर आई. उस गैस का नाम दिया गया हाइड्रोजन. नाउ ही टोल्ड दैट कि हाइड्रोजन ने क्या किया, हाइड्रोजन ने बाकी हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ उन्होंने बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर दिया. दैट रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ H4, दैट इज हीलियम. नाउ जब इनका बॉन्ड बनता था तो कुछ फ्रैक्शंस ऑफ एनर्जी वाज नॉट यूटिलाइज्ड, जिसकी वैल्यू बहुत थोड़ी सी थी. बट मींस ये आपका हाइड्रोजन से हीलियम बन गया. हीलियम क्या होता है? इन शॉर्ट यू कैन से फायर. मींस वी कैन से दैट हाइड्रोजन और हीलियम ने जब अपने बॉन्ड बनाने स्टार्ट किए, दैट रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ योर स्टार्स. सर आवाज नहीं आ रही. सर आवाज नहीं आ रहा. नाउ इट इज क्लियर. हाँ, नाउ इट इज क्लियर सर. ये थोड़ा आज की प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि मैंने इशू बना लिया है, मतलब इशू रिजॉल्व करा लिया है. कभी भी चालू हो जाएगा तो हमारी प्रॉब्लम ये नहीं आएगी. नाउ व्हाट आई एम सेइंग, मैं थोड़ा आपको आगे ले गया हूँ थोड़ा बताने के लिए कि व्हाट दिस दे टोल्ड दैट कि ड्यूरिंग दैट टाइम वन एक्सप्लोजन टुक प्लेस. बिकॉज ऑफ दैट एक्सप्लोजन वन गैस इमर्ज. दैट गैस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन. Now, this hydrogen gas started making bond with other hydrogen bond. उन other hydrogen bond made led to the formation of your H4, that is helium. Helium क्या आपका फायर है. Means in hydrogen helium ने क्या किया, आपस में बॉन्ड बनाने स्टार्ट कर दिए.
तो अल्टीमेटली वे भी क्या होते गए, आपके साइज में बड़े होते गए, साइज में बड़े हो रहे मींस एनर्जी में बड़े हो रहे हैं, फायर बड़ी हो रही है, दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ योर स्टार्स। सन भी क्या हमारा एक स्टार है। इफ आई टॉक अबाउट सन आल्सो वी से दैट समवेयर अराउंड अभी जो रिसेंट रिसर्च ये कह रही है समवेयर अराउंड 78% that our sun consists of your hydrogen and somewhere around 22% it consists of helium and rest other gases। तो मींस बोला गया वो एक्सप्लोजन में आपका हाइड्रोजन का चीज इवॉल्व होके आई एंड अल्टीमेटली हाइड्रोजन से हीलियम बना, हीलियम से आपके स्टार्स बने एंड इट कैरी ऑन। ये सब बातें हमारी सिंपल एक बात बोली गई। नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम they also told that they had tried to explain this thing with the help of a example जिसको हम लोग बैलून एग्जांपल के नाम से बहुत हम अच्छी तरह जानते हैं। What they told मीन्स एक एग्जांपल दिया जा रहा है, जैसे हम लोग कहते हैं कि एक्सपेंशन कैसे हुआ। जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज वन बैलून इन योर माइंड। ये आपके आगे भी दिख रहा है, बैलून चल रहा है। मीन्स स्मॉल बैलून पे अगर हम कुछ डॉट्स लगाएं एंड अभी तक उसको हमने फिल नहीं किया हुआ विद एयर, बट वी स्टार्टेड फिलिंग विद एयर, it result into expansion, but the dots which we had put it on the balloon, they will also going to expand, as well as distance between them also going to expand, the distance between them also going to expand। तो in the same way ये बिग बैंग थ्योरी को भी एक्सप्लेन करते हुए समझाया गया था। मींस बिग बैंग थ्योरी ने क्या बताया, मॉडर्न साइंटिस्ट told that big bang explosion took place somewhere around 13.7 billion years ago, and after the explosion that you can say that hydrogen gas evolved। Now that ball started expanding, when that ball started expanding, hydrogen and other particles were also moving here and there। So means that at the time temperature of that universe was very high। It is said that somewhere around 3 lakhs after 3 lakhs year of that explosion, तो टेम्परेचर जो था थोड़ा सा डिक्लाइन होने लग गया। जब टेम्परेचर आपका डिक्लाइन होने लग गया, एटमॉस्फेयर हमारा ट्रांसमिट हुआ एंड देन हमारी सब चीजें इवॉल्व होने हमारी स्टार्ट हो गई। तो ये हमें बिग बैंग का एक दिया था। आई नो यू पीपल आर अवेयर ऑफ दिस थिंग, बट एक थोड़ा बेस बनाने के लिए मैं आपको एक बेस दे रहा हूँ कि ऐसे हमारा क्या हुआ। मींस यू कैन से हमारे बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ, तो बिग बैंग एक्सप्लोजन के बाद फर्स्ट थिंग हमारी क्या बन के आई, फर्स्ट थिंग हमारी स्टार्स बन के आए। फर्स्ट थिंग हमारी स्टार्स बन के आए। नाउ ये स्टार्स क्यों बने, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम ने जब आपस में बॉन्ड बनाना शुरू किया, ये ग्रेविटी की वजह से हुआ। इट इज सेड दैट जब आपके डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट डेंसिटीज के साथ उन्होंने रब होना शुरू किया, तब आपकी ग्रेविटी इवॉल्व हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर हाइपोथेसिस, हम इन्हीं हाइपोथेसिस के ऊपर चल रहे हैं, सब कुछ प्रूफ नहीं है, बट हाइपोथेसिस है, मोस्ट एप्रोप्रिएट हाइपोथेसिस है, इनके ऊपर चल रहे हैं, जो कि ऑथेंटिक बुक्स और हमारी एनसीईआरटी जो इनके बारे में जो बात कर रही है। It means we can say that first of all Big Bang explosion के बाद हमारे स्टार्स बने, स्टार्स के बाद हमारा कहीं ना कहीं हमने कहा सन बन गया। एक लार्जली एक चीज मेरे माइंड में आ रही है, क्वेश्चन भी कई बार मैंने देखा है प्रीवियस टाइम में, मींस जो आपके मींस वी आर सेइंग दैट सन में से सनलाइट आ रही है। सनलाइट आने का रीजन हमें पता लग गया कि सर वो हीलियम की वजह से कहीं ना कहीं जब बॉन्ड बन रहा है तो कुछ एनर्जी वेस्ट हो रही है, वही एनर्जी वेस्ट हो रही है, वही हमारे पास एज ए अर्थ पे वो एनर्जी सनलाइट आ रही है। एक पॉइंट, how much time that sunlight take to reach to the earth's surface? Around 8 minutes. यूपीएससी में अराउंड 8 मिनट तो क्वेश्चन नहीं आएगा ना, ऑप्शन नहीं आएंगे। अच्छा, इट इज 8 मिनट 31 सेकंड। राइट डाउन। सनलाइट जब आपके बेटा देखो, आपको जो चीज इंपॉर्टेंट लगती है, आपके पेन को प्लीज शार्पन रखिए ताकि आप सब साथ साथ लिखते रहेंगे इन पॉइंट्स को। सनलाइट टेक 8 मिनट 31 सेकंड टू रीच टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, नाउ इट मींस वी हैड डिस्कस्ड योर स्टार्स। ये स्टार्स क्या दिखा रहे हैं, गैस क्लाउड्स दिखा रहे हैं। They are started condensing, that result into formation of your stars। Now sun भी कहीं ना कहीं clear हो गया। Now coming on to planets, important thing। Now
we had already discussed that because of you can say friction between different densities of gravity evolved. तो डस्ट पार्टिकल्स जो हमारे सोलर सिस्टम में कहीं ना कहीं इवॉल्व थे, जो स्प्रेड हो रहे थे, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी दे स्टार्टेड क्लपिंग विद ईच अदर. They started clumping with each other into small units. उन small units को हमने planetesimal बोलते हैं. The small dust particles which are revolving in our solar system, they started clumping with each other. They are called as planetesimals. इनको planets नहीं बोलते हम, planetesimals बोलते हैं. Now, when these small planetesimals clump with each other, that result into formation of our planets. Means how stories goes on: Big Bang, explosion, hydrogen, helium, stars, suns. Now the dust particles. Dust particles in the atmosphere, they started clumping with each other. That result into planetesimals. Planetesimals result into your planets. Now one questions come in our mind. सर ठीक है, कहानी क्लियर है, बन गई, एक स्टोरी बन रही है, एक फ्लो बन गया हमारा. It is said that our stars are after stars हमारे planets आ गए, means somewhere around you can say 5 billion years ago we have planets. But one questions come in our mind because geography पढ़ रहे हैं, sir why these planets are revolving around the earth? Why these planets are revolving around the sun? It is all because of a gravitational pull of sun and planets. Now understand one thing: sun is made up of gases. It has gravity, तभी तो पे है. Same thing we say that our planets are also formed because of gravity. तो gravity का बहुत बड़ा रोल हो गया. Now understand one thing: if I talk about the planets' density is high. Their gravity is also high. But if I talk about sun is made up of only of your gases. Because the sun is made up of gases, it is bigger in size. उसकी gravity क्या है, कम है as comparison to your planets. Planets are smaller in size, but their gravity is high as comparison to your sun. So result क्या हुआ? So because of that gravitational pull, gravity of planets and moon, they started pulling each other. बट एक दूसरे को खींच नहीं पाए. सन प्लैनेट्स को नहीं खींच पाया. क्यों? क्योंकि प्लैनेट्स की ग्रेविटी ज्यादा थी, और प्लैनेट सन को इसलिए खींच पाए क्योंकि इट वाज बिगर इन साइज. व्हाट वाज द रिजल्ट? रिजल्ट वाज दैट प्लैनेट्स स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड द सन. प्लैनेट स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड द सन. छोटी ऑर्बिट, कम डिस्टेंस है, ज्यादा है तो ज्यादा बन गया. गेटिंग माय पॉइंट? अब इसी पॉइंट से लिंक होते हुए मेरे दो माइंड में क्वेश्चन मर रहे हैं जो सिंपलर हैं, आई थिंक सबको पता होना चाहिए. इफ आई टॉक अबाउट द प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू द अर्थ, वो कौन सा है? मरकरी और वीनस? आई एम सॉरी, कहते हैं मरकरी और मार्स. मरकरी, मार्स, वीनस में से कौन सा प्लैनेट अर्थ के पास में है? Venus is near, sir. वीनस और मार्स? Venus. तो जी एक बात है, फिर हम लोग सारी कहते हैं एक्सप्लोरेशन के लिए मार्स पे क्यों जा रहे हैं? Sir, because it is more suitable planet than Venus. And it is less. Sir, it is less heat. Yeah, good point. Good point. Venus is the hottest planet on the earth. Why it is hottest planet on the earth? Any idea? Because of more helium gas. Anything else? सर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ पे, क्यों है? क्यों है? And also because it is nearer to the sun than Mars, वो इसलिए भी. तो जी हॉटर तो फिर आपको मरकरी होना चाहिए था. वीनस से क्यों? वीनस से क्यों? बेटे वीनस का पॉइंट क्या है?
आपने जो पॉइंट बोले उसको मैं क्लब कर रहा हूँ। वीनस में वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, उस वॉल्केनिक इरप्शन से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, वो आपकी हीट को बाहर निकलने नहीं देता, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है। ये इसका स्मॉल रीजन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वीनस में आपके वॉल्केनिक इरप्शंस आज भी हो रहे हैं। उन वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से वहां पे इतना गैसेस इवॉल्व हो चुकी हैं कि वो जितनी भी हीट सन की जो ट्रैप हो चुकी है अंदर और भी आ रही है, तो उस हीट को बाहर नहीं निकलने दे रहे, इसलिए वीनस को हम लोग हॉटेस्ट प्लैनेट में कहते हैं। ठीक है, नाउ ऑन दैट बेसिस आई एम कमिंग ऑन टू अनदर थिंग। सर एक सामने इमेज दिख रही है, इमेज में दिख रहा है वी हैव मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, वी हैव जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। सर ये दिख रहा है, फिर ये कुछ प्लैनेट्स बड़े हैं, कुछ प्लैनेट्स छोटे हैं, means some are 4 are smaller planets and 4 are bigger planets। ठीक है, एक छोटी सी चीज मैं बता रहा हूँ, जो हमारे इन प्लैनेट्स को हमने अगेन दो में सब डिवाइड किया हुआ है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एंड जोवियन प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल मींस जो सिर्फ आपके लैंड मींस रॉकी मटेरियल से बने हुए हैं। इफ आई टॉक अबाउट जोवियन प्लैनेट मींस जो आपके गैसियस एज वेल एज आपके रॉकी मटेरियल से बने हुए हैं। Jovian planets are bigger in size, but terrestrial planets are smaller in size. Terrestrial planets are smaller in size, Jovian planets are bigger in size. तो एक पॉइंट आया। Now why? सर बिकॉज उसका सन का जो एक वो क्या बोलते हैं उसको, एक रेज होती, वो मार्स तक ही, उसके बाद नहीं जाता वो, या उसके बाद उसकी गैसेस नहीं जाती। Okay. Anything else? Anybody? Should I add? Now तो understand. ग्रेविटेशन कम है जो भी हम प्लैनेट्स का। मैं आपको सब चीजें वो कैच करवाता हूँ। Somewhere around, you can say after the formation of planets, because of gravity, the planets were able to attract the gases as well as dust particle around you। ठीक है, जितने भी डस्ट पार्टिकल थे सारे वो हो गए, क्लब हो गए, प्लैनेट्स बनते गए। Now somewhere around you can say 4 billion year ago there was a, जैसे भी आपका ब्लास्ट कल हुआ है लेबनान में, सेम एक ब्लास्ट हुआ था सन, जिसको हमने बोला गया कि उस ब्लास्ट की वजह से एक सोलर फ्लेयर्स निकली सन में से, जिसको हम लोग सोलर विंड्स के नाम से भी जानते हैं। बिकॉज ऑफ दैट सोलर फ्लेयर्स मींस उनका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि मींस जो भी प्लैनेट उनके पास में थे, नाउ ट्राई टू विजुअलाइज द प्लैनेट्स व्हिच आर नियरर टू द सन, उनके ऊपर सोलर फ्लेयर्स का इतना इम्पैक्ट था कि जितने भी उनके डस्ट पार्टिकल्स और गैसियस पार्टिकल्स थे, दे वर ब्लोन ऑफ फ्रॉम दीज प्लैनेट्स। रिजल्ट क्या हुआ सर, जितने भी उनका जो रॉकी मटेरियल था वो रह गया, बाकी सब उड़ गए। As well as if I talk about these planets like Mercury, Venus, Earth and Mars, their gravity is also low as comparison to Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. It means we can say that because of solar flares impact, these terrestrial planets are unable to hold these gaseous material because of less gravity. Even you can say second point we can say that solar flares impact was more on these planets। सोलर फ्लेयर्स का इम्पैक्ट ज्यादा आपके मार्स तक की था, उसके बाद इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। That's why the Jovian planet like Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, they are the bigger planet and ये आपके smaller planets हैं। और इन्हीं मीन्स नाउ जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस बात करें मीन्स गैसेस पार्टिकल्स दूर हैं, वार्मनेस कम है, कोल्ड ज्यादा है, सन की ज्यादा हीट वहां पे नहीं है, तो वो आपकी जो गैसेस थी कंडेंस होके किस फॉर्म में लग रही है, सॉलिड फॉर्म में आ गई। That's why these planets look like bigger in size as comparison to these terrestrial planets. Are you all with me? Are you all with me? तो means main impact क्या था, solar flares का impact था। ठीक है, now इसके बाद means we can say हमारे planets ये सब चीजें defined आ गई। Now second चीज आती है सर formation of moon।
formation of moon means right now I am discussing my first point with you, that is origin of universe, or you can say origin of earth. Now I am saying one more thing, how your moon formed. Now in 1838, Sir George Darwin came with one theory. He told that moon is formed because of rapid rotation of Earth on its axis, and because of that too much means of speed of Earth, one part of the Earth was disintegrated, and it led to the formation of moon. ये सर जॉर्ज डार्विन ने थ्योरी थी कि एक पार्ट अर्थ से अलग हो गया क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस से बहुत जोर जोर के घूम रहा था. बट मॉडर्न साइंटिस्ट डिस्कार्डेड दिस थ्योरी. Modern scientists told that कि that moon is formed due to an you can say a blix, or you can say it is formed due to a, you can say, accident or due to a collision. उस collision में they told that there was a big planet. They had given a name of planet called as Theia. They told that Theia संदीप, are you with me? हाँ सर, लाइट चली गई थी। लाइट चली गई लग रहा था मुझे. Anyways, अभी आ गई। modern scientists had given that moon is formed due to collision. They told that there was a big you can say asteroid, like the same somewhat the size of Mars, वो उसकी टक्कर हुई अर्थ के साथ. Because of that टक्कर, because of that you can say collision between Earth and Theia, the part of Earth was disintegrated. वो क्या हो गया, kind of you can say small particles में आपका बन गया. Now वो small particles में बन गए, वो small particles क्या हुए, अर्थ की ऑर्बिट में धीरे धीरे घूमने लग गए. तो वो धीरे धीरे घूम रहे थे, धीरे धीरे घूम के वो एक आपके बॉडी बनते गए. उस बॉडी का नाम दे दिया गया मून, इसलिए हमारा मून बना. मींस बिग, इसको बोला गया थिया, एक प्लेनेट, एक नाम से प्लेनेट था जिसकी टक्कर हुई अर्थ के साथ, जिससे हमारा मून बन गया. नो इसी आपकी कोलिजन से एक बहुत बड़ा पॉइंट निकल के बाहर आया. बिकॉज ऑफ दिस कोलिजन the temperature of Earth started increasing. The temperature of Earth started increasing, जिसको हम लोग differentiation भी कहते हैं. Because of that increase of temperature of the Earth, the material started changing their position with respect to their densities. Means we can say that the material which was heavier in size, they started sinking down, and material with lower density started sinking up. That led to the formation of three layers. That's your crust, mantle, and core. That is your crust, mantle, and core. In crust, what we have? We have your continental crust, as well as we have your oceanic crust. I will going to discuss these things with you. हमारे जो बाकी के जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग हम जब सब डिस्कस करेंगे. Continental crust and oceanic crust. They told that the average density of this oceanic crust is somewhere around 3. The density of oceanic crust and continental crust is 3. Although oceanic crust की density 2.7 बोली गई और continental crust की density आपकी 3 बोली गई. And they told that the average density of second layer, that is your mantle, it is said that it is 5. Means ये heavy density था. That's why crust is floating over atmosphere. हमारी अर्थ फ्लोट कर रही है ना, क्यों कर रही है? क्योंकि सर वो डेंसिटी में कम है उसकी. इन द सेम वे जैसे हमारी वाटर के ऊपर हमारी wood float कर रही है, in the same way we are also floating. And it is said that if I talk about core part, it is told that from the outer core boundary to the inner part of the core,
this density vary from 5 to 5 to 13. मुझे आई एम सॉरी, यहाँ पे मेंटल की आपकी जो एवरेज थी 3.4 दिया गया, मैंने 5 लिख दिया यहाँ पे 3.4 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोला गया, बट आउटर कोर से इनर कोर तक ये 5 से लेके 13 तक के में आया। नाउ इनको कुछ नेम्स दिए गए। इट इज सेड दैट कोर पार्ट इज नोन फॉर नीफी। So I have a question. So I have a doubt. यस प्लीज। In crust, oceanic crust is more dense compared to continental crust because the oceanic crust is made from the basalt. Continental And crust is basalt made is- up of basalt. Oh, it's granite. Oceanic crust. And basalt is more denser than granite. Yes. Now, what we are saying, core को हमने क्या बोला गया? Core part is also called as Nifi because ये denser material में आ रहा था. And mantle is called as Sima, that is silica and magnesium. And continental crust means crust part is called as Sial, that is silica and aluminium. मैंने जस्ट आपको एक स्टोरी दी है, एक बेस बनाने के लिए कि हाउ आवर अर्थ इवॉल्व्स, ताकि मैं अब आगे मैं अगर लिंक करूंगा तो पता होना चाहिए ना हमारे कॉन्टिनेंट्स बन रहे हैं, क्यों बने, कैसे बने। व्हाट वी आर सेइंग, बिकॉज ऑफ दैट कोलिजन आपका मून तो बन गया, as well as because of that collision the temperature of earth also started increasing. As temperature of earth also started increasing, it result into differentiation. What do you mean by differentiation? ये एनसीईआरटी वर्ड है हमारा। डिफरेंशिएशन क्या था? मींस जो आपकी लेयर्स बनी वो डिफरेंशिएशन में आई। क्यों आए? बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर द थिंग्स व्हिच आर विद lighter density they are started moving up, and things with the higher density they are started sinking down. That result into your core, mantle and crust, Nifi, Sima and Sial. Are you all with me? Means we can say that we have these things. Now still yet our earth is a barren land. हमारी अर्थ अब तक बिल्कुल barren है. Now because of that increase in temperature the magma started boiling. अब मैग्मा को स्पेस चाहिए था बाहर निकलने के लिए, तो what they did, they starting hitting on the earth crust. Magma started coming up in the form of magma. In the form of magma, whenever your volcanic eruption such kind of thing took place, it resulted into lot of gassing, lot of gases. इसका नाम दिया गया degassing. Degassing मतलब degassing took place हुआ, lot of magma आया, उसमें से बहुत सारी आपकी gases सब आपकी अर्थ सरफेस में आने लग गई. Because of that degassing, lot of gases came onto the surface of the earth. उन सब में से एक जो सबसे important जो आपकी गैस थी वो थी water vapor. It is said that because of that continuous eruption of magma, lot of gases came. उस गैस में मेन इंपॉर्टेंट गैस थी आपकी वाटर वेपर. दैट वाटर वेपर led to the formation of your clouds, and that clouds led to the formation of your rain. And because of that rain, what we got our first, you can say ocean, you can say Panthilasha. We got Panthilasha means water हमारा evolve हो गया. Now वाटर भी इवॉल्व हो गया, मींस डीगैसिंग हो गई, ये सब चीजें हो गया. now how you can say our life evolves on our earth. The life came on the earth because of a, you can say, chemical reaction between your water and your sunlight. Because of that chemical reaction between your water and sunlight, first living organism came onto the earth, that is your blue green algae. And blue green algae came onto the earth surface somewhere around 3800 million years ago.
ब्लू, ग्रीन, 3800 मिलियन ईयर अगो, और यू कैन से 3.8 बिलियन ईयर अगो। मींस इट इज सेटेड, ये हमारी अर्थ अब हमारी इवॉल्व होने स्टार्ट हुई थी। स्लोली स्टेडली सब चीजें आते गई। आई जस्ट वांट टू शो यू अ स्मॉल वीडियो जो हमने बात की है, 5 मिनट्स की वीडियो, जो भी हमने बोला सब चीजें हमारी एक बार रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। मैं इतना मान के चल रहा हूँ हम सबको इतना बेस पता है, एक चीजें रिवाइज हो गई हैं। Is I am audible to all? Yes. Okay. Give me a second. Yes, Just sir. give me a second. Yes. Are you able to see? Yes. एक मिनट please, एक ऑन कर रहा हूँ।
I think my message is clear to you. This is how we evolve. This is how things going on. Now, if means tomorrow onward we will going to discuss about your plate tectonic theory. तो उसमें हम लोग ये सब लिंक कर सकते हैं. It's how dinosaurs era came, how dinosaurs destroyed. तो वही सब चीजें हमारे आगे लिंक होते हुए जाएंगी. Anything you want to discuss? सर जो आपने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स थ्योरी के बारे में बताया था, वॉन्डरिंग स्टार हाइपोथेसिस, सिगार बेस्ड चैम्बरलिन ने जो बताया था सर, तो एक बाइनरी थ्योरी भी है सर, वो भी बोलते हैं कि चैम्बरलिन ही दिया है. हाँ, बाइनरी थ्योरी भी है हमारे पास. हेलो यस, बाइनरी थ्योरी भी है. सर, वो और दोनों में क्या डिफरेंस है? ये बाइनरी थ्योरी में उन्होंने नोड्स की बात की. थ्योरी और बाइनरी थ्योरी, बेटे इनके ना एक डिफरेंट नेम्स थे. मींस एक डिफरेंट नेम से आया गया था. बाइनरी थ्योरी में बेसिकली उन्होंने नोड्स की बात की थी. जैसे बाइनरी थ्योरी में हम कहते ना, उन्होंने कहा था कि नोड्स हमारे बनते गए, नोड्स बनने से हमारे वो सब प्लैनेट्स इवॉल्व होते गए. बट उनका लैक ऑफ प्रूफ था, इसलिए उस थ्योरी पे ज्यादा एम्फेसिस नहीं दिया गया. मीन्स ये सिर्फ हमारे फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. ऑल्दो आई डोंट थिंक सो यूपीएससी कैन आस्क क्वेश्चन ऑन दैट. बस एक बेस बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन दिया था कि ये सब चीजें हमारी ऐसे चल रही है. तो बेसिकली उनका खाली नाम याद रखना है सर कि किसने दिया नहीं, है. अंदर तो घुसने का मतलब ही कोई नहीं है. ठीक है. एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? सिद्धार्थ, yes please. हेलो. Yes, Siddharth. Siddhant, please. Am I audible? Yes, Siddhant, please. सर ये अपना कोर्स हम कब तक खत्म कर देंगे वैसे? बेटा अगस्त में हम खत्म कर देंगे. अगस्त में खत्म हो जाएगा सर? कर देंगे आराम से. और डेली क्लास कितनी देर की होगी सर? अराउंड 1 आवर? मैंने अभी आपको बताया कि अभी मेरा इनिशियल यही है कि इस वीक के लिए हम 1 आवर लेके चलेंगे. फिर अगर मंडे से हमें लगे थोड़ा एक्सटेंड करना है तो हम एक्सटेंड करते हुए चलेंगे. क्योंकि अभी सिर्फ बेस है, अभी तो हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद मैं आपको लिखवाऊंगा भी. राइट सर. क्योंकि ये तो डिस्कशन था, सिंपल था कि हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए सब चीजें. नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं. घर पे हैं तो कोई ना कोई आएगा. मैं कोई डिस्टर्बेंस फील नहीं कर रहा हूँ. ऐसे मेरे साथ भी होगा तो नीड नॉट टू बी. ठीक है, सब कंफर्टेबल है. ठीक है, मेरा फोकस है कि ये अगस्त के एंड होने से पहले हम लोग खत्म कर दें. बाकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है. अगर मुझे लगेगा कि थोड़ा और टाइम देना है, थोड़ा और टाइम देना चाहिए, तो आई विल गिव यू टाइम. बट फोकस रहेगा अगस्त. योर वॉइस इज ब्रेकिंग आई थिंक. नेटवर्क नहीं है सर, आपका आवाज नहीं आ रहा. मेरे यहाँ पे बिल्कुल स्टेबल दिखा रहा है. चलो कोई नहीं, ये नेटवर्क का इशू कल तक रिजॉल्व हो जाएगा. मैं यही कह रहा हूँ. मेरी वॉइस आ रही सबको? Is my voice is audible to all? Yes sir, now it's audible. Yes, अभी है सर. I am saying that कि नेटवर्क का इशू कल तक रिजॉल्व वैसे ही हो जाएगा मेरे एंड पे, क्योंकि मैंने मेरा नया नेट यहाँ पे लग गया है. सेकंड थिंग आई एम सेइंग दैट कि मेरा फोकस है अगस्त तक इसको हम लोग खत्म कर देंगे. इन केस अगर लगेगा रिक्वायरमेंट है इसको आगे एक्सटेंड करने का तो हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं. बट फोकस रहेगा अगस्त तक हम लोग इसको खत्म कर दें. क्योंकि मैं बहुत फास्ट नहीं जाऊंगा, थोड़ा आपको टाइम भी दूंगा रिटेन करने के लिए. क्योंकि फोकस ये नहीं है सिर्फ करा दो खत्म करो. फोकस ये है रिटेन भी तो कर पाए. क्योंकि हमारे देखो जी एक बात बिल्कुल क्लियर है, ज्योग्राफी या कोई सब्जेक्ट भी ले लो, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो होंगे नहीं. अगर ओवरऑल सब नॉलेज गेन अगर हमने गेन की होगी तभी तो उसको लिंक कर पाएंगे. सर आप ऐसे कुछ कर सकते हो क्या, जस्ट एन आइडिया, मतलब कि वीकली एक 20 क्वेश्चन का एक टेस्ट दे दीजिए जो वीक आपने पढ़ाया हो, तो इट विल बी लाइक अ रिवीजन फॉर अस कि हाँ हम लोग का वो कवर हो गया. कर सकते हैं. 20 क्वेश्चन तो ज्यादा नहीं, 20 और क्वेश्चन जो भी आपको. ठीक है. तो
तो उससे क्या हमारा भी रिवीजन हो जाएगा सर। अभी एक घंटा हर दिन पढ़ाई होगा, फिर वीकेंड में ठीक है संडे को रख देंगे सर, वैसा कोई ठीक है। संडे। वैसे मैंने यही फोकस बनाया कि हम लोग वीक में 5 डेज पढ़ेंगे, हाँ 5 डेज पढ़ेंगे, उसको रिटेन करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। और आपके सब घर में सब कैसे हैं? ठीक। ठीक है। अभी तो बाहर ही है सर, घर पे तो है नहीं हम लोग। अच्छा, क्यों? सर मेरा एक्चुअली मैं बॉम्बे में रहता हूँ। आई शिफ्टेड हियर फॉर सिविल का तैयारी दिल्ली के लिए। अच्छा, अभी आप दिल्ली में ही हैं? हाँ मैं दिल्ली में ही हूँ सर। दिल्ली में कहाँ पे आप? पटेल नगर में सर। पटेल नगर में कहाँ पे? अपना के ब्लॉक है ना सर, यहाँ पे वेस्ट पटेल नगर। आई लिव इन आप वहीं पे रहते हैं क्या सर? आई लिव इन पटेल नगर आई ब्लॉक। के ब्लॉक। बताइए, एड्रेस आता हूँ कभी घर पे ही आपके। के का आपका एड्रेस क्या है? अपना ये शुक्रवार बाजार लगता है ना सर यहाँ पे। एड्रेस एड्रेस पूरा एड्रेस क्या, नंबर क्या है? शर्मा कोचिंग सेंटर। शर्मा कोचिंग सेंटर, शर्मा कोचिंग सेंटर जिनका है, दे आर वेल नोन टू मी। ऊपर ऊपर अच्छा, उनके ऊपर ही है ऊपर, मिस्टर। हाँ उसके ऊपर ही है। ओके ओके, गॉट इट। मतलब आपका एड्रेस हो गया K76 होगा या K74 होगा? दूसरा वाला सही है सर। समझ गया। ओके, गुड। नहीं सर, कभी टाइम रहेगा तो बताइएगा, मिलने आऊंगा सर। मोस्ट या आप ही आ जाइए। जब मर्जी आइए। ऑल्दो वहीं से उसी रोड से हम निकलते हैं, घर वाले भेजते हैं जाओ सब्जी ले आओ, तो जाना पड़ता है। नहीं सर, कभी यहाँ पे आएंगे तो एक बार जरूर बताइएगा सर, मिल जरूर लेंगे। मेरे नियर है घर के वैसे, बिकॉज मेरा नेटिव प्लेस यही है। माय फादर born at this place. I also born and brought up here. मैं बिहार से हूँ सर। यहाँ पे सेटल्ड इन बॉम्बे, बट अभी फिर यहाँ पे जॉब वॉब करने के लिए वहाँ पे सेटल हो गया। And what about you, Sandeep? Sir, I live in Noida. नोएडा? Yes. नोएडा में कहाँ पे? Sector 143, 143. वो तो काफी आगे बढ़ गया, And what about you, Siddhant? Sir, I live in Ludhiana, Punjab. लुधियाना? Great. चलो, you take care of yourself. कल मिलते हैं 6:30. Okay, sir. I hope you enjoyed. Bye bye. Yes, yes.